Hello everyone, welcome to the Bypass Route. So today we are going to study this poem, The Schoolboy by William Blake. Alright, so what is this poem about? Basically, it's about an unhappy child. In fact, he's a happy child who is pressurized by parents and teachers equally to become unhappy. So to know more about it, who are the factors responsible for it and how exactly they work so that the child becomes really sad, we'll be studying this poem. So why delay? Come on, fasten your seatbelt and get ready to explore. William Blake is the poet of the poem The Schoolboy. He was an English poet, painter, and printmaker. He was born on 28 November 1757. He died on 12 August 1827. He belonged to the Romantic age and therefore known as Romantic poet. A Romantic poet usually talks about nature in his poems. The poem The Schoolboy has been taken from his collection Songs of Experience. So let's look at the first stanza. Here the speaker is a school going boy or schoolboy. Alright, so यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बच्चा है, this boy suffers a lot. Okay, he was in fact a very happy child, but then because of unwanted pressure from the side of the teachers and from the side of the parents, the boy suffers like mental agony. मतलब उसका मेंटली इतना प्रेशर होता है कि वो बहुत ही दुखी बन जाता है. लेकिन ये जो पहला स्टैंजा में आप लोग देख सकते हो कि he will be so happy. Alright, and guys, one more thing you can notice that throughout the poem you will see various references of nature. Why? Because William Blake is a nature poet. Alright, so he is a romantic poet and all the romantic poets, they love nature. Okay, this is one thing. So let's see the opening line of this poem. What does it say? I love to rise in the summer morn. Guys, morn का मतलब होता है morning. समर मॉर्निंग में ये बच्चा को मतलब सुबह सुबह जगने के लिए उसको बहुत अच्छा लगता है. Guys, tell me, is it fine for you people to wake up in the summer morning and enjoy? No, nobody loves that. But why does this boy loves it? It's because William Blake belongs to England, and in Western countries, guys, mostly the weather, the climate is mostly cold. Alright, so they always look for a little bit of sun. उनको थोड़ा जैसे गर्मी आ जाए उनको बहुत मजा आ जाता है. तो यहाँ पे क्या है? The boy is also waiting so desperately for the morning to come so that he would go out and enjoy. Alright, and what else he says? कि when the birds sing on every tree. उसी टाइम पे जब वो सुबह सुबह मॉर्निंग में जगेगा तो उसके दोस्त लोग कौन सारे होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बर्ड्स, दे विल बी चर्पिंग ऑन एवरी ट्रीज. मतलब ट्रीज पेड़ में बैठ के जो बर्ड्स वगैरह वो लोग चर्पिंग करते रहेंगे तो कितना मजा आएगा, मेलोडी ऐड कर देगा. एंड देन द डिस्टेंट हंट्समैन, ओके, विंड्स हिज हॉर्न. डिस्टेंट हंट्समैन मतलब हंट्समैन का मतलब क्या होता है? हंटर. और विंड्स का मतलब होता है ब्लो करना, बजाना. हॉर्न का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज ब्लोन बाय द हंटर्स. तो वो भी एक मेलोडी क्रिएट करता है. बर्ड्स का मेलोडी आ गया, फिर यहाँ पे हंटर का मेलोडी आ गया. एंड देन व्हाट? And the skylark sings with me. And the skylark क्या होता है? Skylark is a kind of songbird that sings beautifully. Alright, and oh what a sweet company. कितना मजा आएगा मतलब जब कि यहाँ पे आपका हंटर, उसके बाद जो स्काईलार्क और उसके बाद समर मॉर्निंग, ये सारे है ना बहुत ही मजा आएगा. So you see the complete stanza is full of happiness. Alright, let's look at the next stanza. So everything looks so sad here. Because the first line of the second stanza begins with the word but. इसका मतलब जितना भी हैप्पीनेस था, जितना भी अच्छा चीज था, अभी सब उल्टा होने जा रहा है. ठीक है? So there will be no waking up in the beautiful morning, there will be no song of the birds, there will be no song of the skylark, and there will be obviously no, the hunter's horn. I mean, there will be nothing. It's all sad because the boy has to go to school. और स्कूल में क्या होता है? All schools are not like that. Some schools are so boring. Actually the buildings doesn't make it boring. The teachers make it boring. Teachers जो होते हैं कुछ ऐसे रहते हैं, मतलब खड़ूस. Okay, that the students feel so bored. Okay, the energy, the beauty, the happiness, the passion that is completely lacking from the teacher's side. Alright, मतलब इंटरेस्ट के साथ कोई पढ़ाता नहीं है तो बच्चा को अच्छा नहीं लगता है. इसके बारे में बताया क्या सुनो. But to go to school in a summer morn, it drives all the joy away. जब हम स्कूल जाते हैं मॉर्निंग, ठीक है,
तो हमें बहुत ही बोरिंग लगने लगता है, जितना भी जॉय है ना वो दूर चला जाता है। अंडर अ क्रूएल आई आउट वन, क्रूएल आई कौन है यहाँ पे? द क्रूएल आई ऑफ द टीचर्स हु कीप स्टेयरिंग एट यू ऑल द टाइम। ओके, आउट वन का मतलब समथिंग दैट मतलब धीरे धीरे रिड्यूस हो चुका है। क्या रिड्यूस हुआ है यहाँ पे? जो इंटरेस्ट है पढ़ाने का, टीचर्स अब बहुत दिन पढ़ाने के बाद, बहुत साल पढ़ाने के बाद, पुराना हो जाने के बाद, एक्सपीरियंस हो जाने के बाद, अभी टीचर्स अरे यार वही बच्चे फिर आ गए क्लास में, क्या पढ़ाऊं इनको, ऐसा माइंडसेट आ जाता है। तो इट डजंट शो एनी काइंड ऑफ लव। So when love doesn't come naturally from the heart of the teacher, how do you expect some kind of happiness in the heart of the child? Not possible, right? और फिर क्या होता है? The little ones spend their day in sighing and dismay. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने जो टाइम को स्कूल के क्लासरूम के चारों दीवारों के बीच बैठ के कैसे स्पेंड करते हैं? साइंग में। साइंग क्या होता है? कब खत्म होगा यार क्लास। ओके, एंड डिसमे मतलब डिस्कम्फर्ट या फिर हॉरर, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है ये सब क्लास में बैठ के ऐसे बोरिंग लेक्चर्स सुनने को। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द सेकंड स्टैंजा। लेट्स लुक एट द थर्ड वन। In the third stanza, again he describes more about the classroom situation, which is completely boring. Okay, what he says, then at times I drooping sit. Drooping का मतलब क्या है? ऐसे, okay, to bend your body completely and sit. Guys, आप कब ऐसे बैठते हो? जब आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत एक्टिव है, तब आप ऐसे करके बैठते हो? No, right? When you are active and completely participating in the class, आप ऐसे बैठते हो, हाँ सर, और बताइए सर, यस सर, ओके सर, यस सर, ऐसा होता है। बट जब आप बोर्ड हो जाते हो क्लास में, अरे यार कब खत्म होगा यार क्लास। ओके, दिस इज व्हाट बिकम्स द सिचुएशन। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट ड्रूपिंग सिट। तो उसको मजा नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही बैठ जा रहा है। ओके, एंड स्पेंड मेनी एन एंशियस आवर। एंशियस मतलब क्या है? वरीड। ओके, बहुत सारा जितना भी समय बिताता है स्कूल में वो बच्चा, मतलब पूरा बोर्ड हो जाता है, क्योंकि टीचर जो खुद एंजॉय नहीं कर रहा है अपना पढ़ाना, ओके, द टीचिंग, then how do you expect the child to enjoy? Because you know guys, Newton's third law, what is that? Every action has equal and opposite reaction. तो यहाँ पे टीचर ही खुश नहीं है पढ़ाने में, तो बच्चे कैसे खुश होंगे? राइट, सिंपल सा लॉजिक है। एंड देन नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। डिलाइट मतलब हैप्पीनेस। तो ऐसा बोरिंग एटमोस्फियर में वो बुक में इंटरेस्ट कैसे ले सकता है? ओके, नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर। लर्निंग्स बावर मतलब यहाँ पे स्कूल है, लेकिन उसका वाकई में मीनिंग क्या होता है? बावर का मतलब होता है अ शेडी प्लेस इन द गार्डन। ओके, कोई पेड़ के नीचे बैठ जाना, दैट इज अ काइंड ऑफ लर्निंग बावर। तो यहाँ पे स्कूल को बोला जा रहा है लर्निंग बावर। तो वहां पे भी बैठ के आराम से नेचर की गोद में बैठ के भी वो एंजॉय नहीं कर सकता है। गाइस, यू नो, मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, विलियम ब्लेक इज अ रोमांटिक पोएट एंड ऑफन ही वुड बी टॉकिंग अबाउट नेचर। Okay, skylark, birds, trees, you see all of that, and now learning's power, right? तो वहां पे ये जो स्कूल के क्लासरूम में the बच्चा, okay, the child is not having fun, all right, and then what? Worn through with the dreary shower. Worn का मतलब क्या है? Completely fed up. Okay, dreary का मतलब क्या होता है? Something that is lifeless, uninspiring, boring. Okay, ये इस चीज का शावर हो रहा है। गाइस, आप लोगों को पता है बारिश का मतलब शावर होता है, राइट? बाथरूम में जाते हो तो शावर ऑन करते तो पानी गिरता है, जैसे आप मुंह दिखा देते हो तो सिर्फ पानी ही गिरता है मुंह पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे बारिश हो रहा है, लेकिन किस चीज की? बोर्डम की। टीचर सीधा बोरिंग करके अपना जो आए थे पढ़ाने के लिए एक्सप्लेनेशन, डाटा पूरा एकदम फेंकते जा रहे हैं। आप सुनो ना सुनो, समझो ना समझो। ओके गाइस, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टैंजा. Blake once again in this stanza gives a bird reference, which is again a part of the nature. All right, so देखो क्या बोलते हैं stanza में. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? Cage का मतलब क्या होता है? Prison, जेल होता है. तो एक बर्ड जो कि क्या करने के लिए? जॉय, हैप्पीनेस के लिए पैदा हुआ है। बर्ड का क्या काम होता है? यू नो, इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, फ्रीडम उसके पास ही रहता है। Whenever it wants, it can fly everywhere in the bluest of the skies and enjoys his life. तो एक बच्चा भी एक बर्ड की तरह ही होता है। It also loves to enjoy his life. लेकिन अगर एक बच्चे को आप जबरदस्ती पकड़ के केज में, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जेल में, मतलब क्या है? स्कूल में।
अगर कोई बच्चे को आप स्कूल में डाल देते हो जहां पे टीचर्स बहुत ही क्रूएल होते हैं, बच्चा का सेंटिमेंट को नहीं समझते हैं, तो वहां पे एक बच्चा कैसे फ्लरिश करेगा, कैसे कुछ सीखेगा, कैसे एक्सप्लोर करेगा अपने लाइफ को? दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ओके, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग? केज में बैठ के कोई बर्ड को आप गाने के लिए बोलोगे तो नहीं गा सकता। अगर आप लोग पढ़े हो आपका सप्लीमेंटरी रीडर से प्रिंसेस सितंबर लेसन, तो वहां पे क्या होता है, प्रिंसेस सितंबर का जो बहनें होते हैं, दे टेल प्रिंसेस सितंबर टू पुट द बर्ड इन द केज एंड आस्क इट टू सिंग। So that's what she does later on, taking their bad advice. And क्या होता है? Does the bird sing? No, it does not. तो आप किसी का फ्रीडम को लेके उसको जबरदस्ती गाने के लिए बोलोगे तो नहीं गाएगा। आप एक बच्चे को खींच के, मतलब एक घोड़े के एग्जांपल अगर लेंगे, तो अगर एक घोड़े को आप खींच के आप लेके पानी के पास रख दे सकते हो, लेकिन जब तक घोड़े को प्यास नहीं लगता, घोड़ा कभी पानी नहीं पिएगा। You understand that? तो जबरदस्ती आप एक बच्चा को पढ़ा नहीं सकते। We have to create interest, happiness in the child first of all, to make it learn. Am I right or not? Next क्या बोलता है? How can a child when fears annoy का मतलब क्या होता है? Irritation, anger. अगर एक बच्चा डर रहा है अपने टीचर को कि अरे ये सवाल अगर मैं पूछ दूं, टीचर मुझे अगर डांट दे तो मैं, अगर ऐसा सोच आ जाएगा बच्चे में, तो हाउ कैन द चाइल्ड आस्क एनी क्वेश्चन? नो, राइट? क्वेश्चन अगर सवाल है भी तो उसको मन ही मन उसको दबा देगा, कभी ही विल नॉट आस्क एनीथिंग ऑन दैट। ओके, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, बच्चा का जो टेंडर विंग्स रहता है, टेंडर मतलब क्या है? सॉफ्ट। विंग्स मतलब क्या है? विंग्स आर समथिंग दैट हेल्प्स यू फ्लाई। तो बच्चे का जो मन है, जो दिमाग है, जो उड़ने के लिए कुछ चाहता है, क्रिएटिविटी का आसमान में जो उड़ने के लिए उसका जो इंटरेस्ट आता है, दैट विल स्लोली स्लो डाउन, दैट विल नेवर हैपन। ऑलराइट, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। स्प्रिंग, व्हाट इज स्प्रिंग गाइस? स्प्रिंग इज द सीजन व्हेन एवरीथिंग टेक्स इट्स रीबर्थ। छोटे छोटे पौधे वगैरह स्प्रिंग के सीजन में वो धीरे धीरे रीबर्थ लेने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पे, मतलब द किड्स आर आल्सो दे कैन बी कंपेयर्ड टू द स्प्रिंग, क्योंकि वो भी कुछ नया सीखने का, दैट इज देयर टाइम, राइट? सो उसी टाइम पे आप उसको अगर जबरदस्ती करोगे, डराओगे, धमकाओगे, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। In the previous stanza, the boy compared himself with a bird, and now he compares himself with tree, plants. तो देखो, प्रीवियस स्टैंजा में तो मतलब स्टैंजास में टीचर्स लोगों को ठीक हिसाब से एडवाइस दिया था, कंप्लेन किया था उन लोगों के खिलाफ, लेकिन इस स्टैंजा में पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चा को भली भांति पता है इस बात का कि एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस वेयर पेरेंट्स, टीचर्स एंड द चाइल्ड हिमसेल्फ ऑल आर इन्वॉल्व्ड एंड दे ऑल प्ले अ मेजर रोल। तो यहाँ पे बच्चा क्या कहता है, खुद को एक प्लांट के साथ कंपेयर करते हुए कहता है कि ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे। अगर आप बर्ड क्या होता है? द अर्ली स्टेज ऑफ अ फ्लावर, राइट? वो छोटा सा जो रहता है, ओके? तो अगर उसको निप कर दिया जाए, निप मतलब क्या होता है? टू कट इट ऑफ। एंड ब्लॉसम्स, जो कि फ्लावर ऑफ द प्लांट विच लेटर बिकम्स फ्रूट, अगर वो उड़ जाता है, डैमेज हो जाता है, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ फ्रूट टू अपीयर देयर? वहां पे फ्रूट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लांट डैमेज हो गया। उस हिसाब से बच्चा खुद को कंपेयर करके क्या कह रहा है, सुनो। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, टेंडर प्लांट्स मतलब खुद को, मतलब बच्चों को बोल रहा है, अगर वो जो सॉफ्ट प्लांट्स है, अगर उसको आप स्ट्रिप कर दोगे, निकाल दोगे, डैमेज कर दोगे, ऑफ व्हाट? ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे। जब कुछ उनको सीखना होता है, कुछ जानना होता है, कुछ एक्सप्लोर करना होता है, जब क्यूरियोसिटी उनमें बना रहता है, उसी टाइम पे अगर आप लोग उसको क्या कर दोगे? बर्बाद कर दोगे। देन क्या करके? बाय सोरो एंड केयर डिस्मे, मतलब उसको आप, सोरो मतलब क्या है? गम, मतलब दुख, ठीक है? ये सब देके उसको अगर डराओगे, एंड डिस्मे का मतलब क्या होता है? अगेन दैट फियर, एनॉय, ऑल ऑफ दैट, ओके? अगर ऐसे आप उसको डराओगे तो वो बच्चा क्या सीखेगा? He says, how shall the summer arise in joy? ये जो समर है कितना हसीन होता है, कितना मस्त होता है, ये हैप्पीनेस कैसे ला सकता है? और द समर फ्रूट्स अपीयर, ये समर में जो बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स आते हैं वो कैसे आएंगे? जब आप पहले से ही उसका बर्ड्स को निप कर दोगे, उसका ब्लॉसम को बर्बाद कर दोगे, then how is that possible? He says, he attacks the parents here, says that
आप अगर आपके बेटे को हर वक्त शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर करोगे तो बच्चा कैसे क्या करेगा। देखो शर्मा जी का बेटे 99% लाया है, तुम क्या लाए हो 30%, 40%, 80%, ये क्या मार्क्स होता है। अगर आप बच्चे को ऐसा करोगे तो बच्चे कैसे पढ़ेगा। उसका बच्चे को देखो ये करता है, वो करता है, वो करता है, वो करता है। अरे दूसरों को बच्चे को क्यों देख रहे हो। समटाइम्स लुक एट योर ओन चाइल्ड, हाउ स्मार्ट योर बॉय इज, हाउ स्मार्ट योर सन इज, right? That's what the boy is saying, not me. All right, so the boy is saying all of that. He has said number of things for the teachers and number of things also for the parents. So now it's time that the teachers and the parents also be equally careful. They should understand their responsibility and deliver and discharge it with all their heart. Okay guys, so that's all about the poem. But listen, if you have come to my channel for the first time, please hit the like button and definitely, give some beautiful comments. I will read that and it makes me really happy. And most important thing is, please subscribe so that you will not miss any future notifications that will be coming from the bypass route side. Alright, and yes, please do not forget the like. That is something that motivates me really to make such awesome videos. So guys, that's all for today. Happy learning.